me a great pleasure to extend a very warm welcome on behalf of Mass Organization. I welcome Honorable Guest Speaker, respected Dr. Pradnya Aptikar Ma'am, all Mass members and today's attendees. Go meeting Facebook Live in Mass Organized 14th Online CME. Dear doctors, as you know, infertility over recent years has become emerged as one of the most common health issues that many young couples have been facing. Sedentary lifestyles with minimum physical activity, rising stress level, irregular sleep pattern are a few reasons. According to the Indian Society of Assisted Reproduction, infertility currently affects about 10 to 14% of the Indian population, with higher rates in urban areas where nearly 27.5 million couples actively trying to conceive suffer from infertility in India. So dear doctors, you will understand it's a very important task in front of health workers, as many treatments and innovations are currently going on in modern science. How much they are successful, don't know. But in concern of about Ayurveda, I can definitely say yes. Ayurveda can do best with result-oriented treatments in case of infertility. It's my personal experience of 10 to 12 years at Dr. Garja's Ayurveda clinic. As there are so many doctors in Ayurveda doing same, many Ayurveda infertility clinics are starting now. So in this current situation, we should definitely focus on Sadhyatva about infertility cases. In detail study about primary, secondary and unexplained infertility cases. So to learn more about this important subject, we have selected today's topic, Sadhyatva in Vandyatva. And we have invited renowned personality leading Ayurveda gynecologist from Thane, Dr. Pradnya Aptikar Ma'am. As a tradition of our Ayurveda, let's start our today's session or today's CME with prayer of Adya Pravartak, Ayurveda Adya Pravartak Lord Dharmantari. I would like to invite Dr. Piyush Sikotra sir, who is a coordinator of Mass. Dr. Piyush sir, please. धन्यवाद रामदास सर. नमस्कार वैद्य आपटेकर मैडम. नमस्कार सभी वैद्यगण. मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर धन्वंतरी जी का नाम स्मरण कर प्रार्थना के लिए प्रारंभ करें. यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत्यञ्जसा सृष्ट्वा दिव्यमहौषधीश विविधान् दूरीकरोत्यामयान् विभ्राणोऽञ्जलिना चकासि भुवने पीयूषपूर्णं घटं तन्दन्वन्तरिरूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे वन्दामहे श्रेयसे. Thank you, Dr. Piyush sir. Now I would like to invite Dr. Sheetal Trivedi, who is a treasurer of Mass Mumbai region. Please introduce our Mass organization to his delegates, aim, objectives, and why to join. Dr. Sheetal Trivedi, ma'am. Dhanyawad Raju sir. Namaskar. Hello everyone. Today I am going to give you a brief introduction about Mass and its aim and objectives. Mass is the Maharashtra Association of Ayurveda Students and Doctors. It's a unique universal organization of students, private practitioners, doctors, surgeons, technical experts, and pharmaceutical companies. Now we come to the aim and objective of Mass. Actually, it is a unique concept that first of all, we need to make it the best organization to achieve goal of Mass organization. First of all, we should unite. So all doctors, students and doctors Mass organization should get together, and other established Ayurvedic organization take them together with friendly hands to establish a comprehensive organization of Ayurveda in the world. Secondly, sovereignty of Ayurvedic doctors to establish it, doctors in the administrative, private, educational, medical, judicial and public health sectors.
Third one is to establish good medical education in our Ayurvedic field, for filling medical education errors, organizing national, state level seminars, workshops, and short courses from time to time to address issues arising from medical education system from time to time, and also working as a vital link to university, college, and students. Continuous efforts for medical courses such as scientific, Ayurveda, and modern science to take necessary measures to create Ayurveda, but specialty in medical field. In the research field, participate in various research topics, and also we can give platform to all the scholars to convey their work in the Ayurvedic doctors and students. In the social level, rehabilitating the services rendered in the medical field again, and staying active to provide the medical services to the weak, neglected constituents of the country, as well as to cooperate with the government agencies. In the cultural side, MAS organized cultural programs to strengthen the organization of MAS and Ayurveda, to preserve our cultural value and heritage. Like MAS Foundation Day, we already organized cultural events. Also, seventh one is to spread and propagation of Ayurveda, promotion of the Ayurveda principles of our scientific theories, healthcare, for world welfare, and spread publicity across the globe for humanity. We also need cooperation from the industries to make special efforts in this field for Ayurvedic doctors. We can implementation of new Ayurvedic medicines, manufacturing units, and Panchkarma equipment. Our main aim is to protect and cultivation of Ayurvedic plants. In this field, we can promote and encourage many farmers, pharmacy companies, our distributors, and even government sectors to coordinate with proper measures to prevent our valuable Ayurvedic plants. Also, another aim is to nationalism. While working in relation to Ayurveda, MAS will always be rewarded for the welfare of country, for the benefit of country. Also, we need expansion and growth of Ayurveda. For that, to create appropriate platform for the growth of Ayurveda and develop coordination among different persons and institutes who are working in the field of Ayurveda. And for that, we can motivate state and union government for the expansion and growth of Ayurveda. Also, to make Ayurveda an integral part of healthcare management and educate general public about the use of herbal medicines. Now, the thing is how we can join MAS or how we can take membership. There are two ways. Online, we can go to MAS website www.mas.in, and either you can go to offline where you can contact with your respective MAS district coordinator. Main thing is why we should join MAS. There are several benefits when you will be joining MAS. You can work as a volunteer, as a participant. You can develop your skill via different medical CMEs, continuous research, and different services. You can get information on career, job, and business opportunities. You can connect with Ayurvedic professionals throughout the world. So you should join at least MAS in the nearer future. Thank you, ma'am. Thank you all the participants for listening. Thank you so much. Thank you, Sheetal ma'am, for such a nice introduction. Now, further session, I would like to request Dr. Jeevan Chaudhary sir, who is the district president of Thane MAS. Please give introduction of today's guest speaker, Dr. Pradnya Aptikar ma'am. Dr. Jeevan sir, please. Hello. 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 सर आपला आवाज येतोय बोला. Hello. येतोय हां. Thank you, Dr. Ramdas sir, and good afternoon, Dr. Pradnya Aptikar madam. Dr. Pradnya Aptikar is an education qualification is BMS and gold medalist from Pune University. She is an MS from Pune University and she is pursuing a PhD from gynec and obstetrician. She has also done MA from Sanskrit. She has done the courses like laparoscopy, colposcopy, and IVF certified courses. She is currently practicing Ayurveda at Thane since 2001 and also running a Panchakarma clinic, doing all major and minor gynecology, cesarean and deliveries. She is of Ayurveda Hospital, Thane branch.
She is a BEC member and FPAI and Rotary Club of Thane Metro. She is an ex-lecturer, ex-trader and ex-professor in YMT Medical College for 17 years in gynec and obstetric department. She wrote many articles in local newspapers and magazines. She appeared on television, Doordarshan, Z24 Stars, 7-star care channels, live and recorded shows. Her achievements and awards are 3 main awards. She is a from 1996 batch Pune University. Vaidya Khadiwali Trust, Vaidya Lakshmibai Borwankar Sri Vaidya Puraskar in 2017, and she was edited a book PCOD published by Ayurved Vyaspeeth. She also done many publications, clinical publications for many World Ayurveda Congresses and different type of clinical research papers. Thank you, Dr. Ramdas. Thank you, Chuvan sir, for such a nice introduction of our guest speaker. Dr. Pradnya Aptekar ma'am is a renowned person from Ayurveda and is a famous gynecologist from Thane. And she is our good mentor and good guidance for us, like a teacher. So, on behalf of MAS team, I would like to request Dr. Pradnya Aptekar ma'am, please start today's lecture and guide us. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Ramdas, Dr. Jeevan, for such a kind introduction. And I thank MAS organization and Dr. Ramdas for giving me this opportunity to share my views about infertility. हिंदी और इंग्लिश में बात करूंगी, चलेगा? आई थिंक डॉक्टर रामदास, मराठी विल डू और हिंदी इंग्लिश? हेलो Hello, ma'am. Hello. As per your convenience. Okay. Sometimes there are some Ayurvedic terminologies which are very difficult to explain in English. Then I will switch to Hindi maybe, or otherwise I will try to explain in Hindi, English, whatever. Okay. So thank you. So today's subject is Vandhyatva Kashtasadhya Asadhya. I will make this. Okay. So तो चालू कर रही हूँ सब्जेक्ट मेरा. टुडेज सब्जेक्ट इज वंध्यत्व. अभी बहुत बार हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हमें वो सब जगह जाके 2-3 साल या 4-5 साल ट्रीटमेंट लेके हमारे पास आते हैं पेशेंट्स, और उनकी ऐसी अपेक्षा रहती है कि आयुर्वेद के पास आए हैं तो इमीडिएट कुछ ना कुछ जादू की तरह हो जाए. तो लेकिन उनके यहाँ इतना पेशेंस भी नहीं रहता है. बहुत बार पेशेंट IVF IUI करके इतनी थक जाती है कि उनको लगता है कि आयुर्वेद में ऐसा कुछ तो मिराकुलस रहेगा, तो 2-3 महीने में या 1-2 महीने में हमें हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो ऐसे पेशेंट के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास जो पेशेंट आ रहा है वो हमारे आयुर्वेद शास्त्र के तत्व ज्ञान से, फिलॉसफी से साध्य असाध्यत्व में कैसे बैठ रहा है. क्योंकि पेशेंट, अगर बहुत बार पेशेंट ऐसे आते हैं कि मैडम हमारे सब रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी कंसेप्शन नहीं हो रहा है. तो रिपोर्ट नॉर्मल है ये उनका कहना होता है, या फिर हमें डिसाइड करना है कि हमारे शास्त्र के मुताबिक इनकी संप्राप्ति कैसी शरीर में हो रही है, और ये साध्यत्व के जो हमारे क्राइटेरियाज है उसमें है कि नहीं. अभी आप सबको पता है कि साध्यत्व हमारे हर, अगर आपने निदान स्थान देखा या फिर माधव निदान भी पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता रहेगा कि साध्यत्व हर एक व्याधि में हमारे ग्रंथकारों ने बताया है. ऐसा क्यों बताया है? क्योंकि कोई भी व्याधि अगर सुख साध्य है तो कितने दिनों में उसमें हमें उपशय मिलेगा, रुग्ण को उपशय मिलेगा. असाध्य है तो हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए, कृच्छ्र साध्य है, याप्य है, तो इस प्रकार से हमें काम करना है. तो एक बार रिवीजन के लिए आपको सबको हम एक बार मैं बताना जरूर चाहूँगी कि साध्यत्व हमारे शास्त्र में कैसे लिखा है कि सुख साध्य जो व्याधि है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं. सुखेन साध्यत्वादिति सुख साध्य. तो इसमें कुछ दवाइयाँ दी या फिर कुछ डाइट दिया
थोड़े प्राप्ति भंग करने के लिए जो जो हेतु आवश्यक है उसका भंग किया, हेतु विवर्जन किया, तो व्याधि जो है वो सुख साध्य हो जाता है। तो ऐसे बहुत से केस होते हैं कि हमारे पास आते हैं, 1-2 महीना ट्रीटमेंट लिया तो वो उनको उपशय मिल जाता है। ये सब सुख साध्य में आते हैं। बहुत बार कोई व्याधि ऐसे होते हैं जिसको बहुत दिन तक हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, जैसे 1 साल हो, 2 साल हो, तो ऐसे व्याधियों को हम कष्ट साध्य बोलते हैं, कुचर साध्य बोलते हैं। तो इसमें बहुत दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद हमें साध्यत्व मिल जाता है, उपशय मिल जाता है। उसके बाद जो रहता है याप्य व्याधि। तो याप्य व्याधि मतलब क्या होता है, जब तक आप ले रहे हैं दवा, तो उसमें आप जब तक दवा ले रहे हैं तब तक आपको उपशय मिलेगा। जब भी आपने दवा बंद की तो आपको फिर से लक्षण का पुनरुद्भव हो सकता है। तो इस प्रकार की व्याधि को याप्य कहते हैं। उसके बाद जो रहते हैं वो असाध्य व्याधि है, जिसमें हम कितना भी कोशिश करें हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। और उसके बाद अभी जैसे है गायनेक ऑप्स है या फिर शल्य है, शालक्य है, प्रसूति है, तो इसमें कोई भी व्याधि जो है रहते हैं वो शस्त्र साध्य भी रहते हैं। जैसे चरक में भी हमें बहुत बार ऐसे सूत्र दिखाई देते हैं कि अत्र धान्वंतर्याणाम अधिकारः। तो कभी कभी चिकित्सा में हमें शस्त्र यंत्र का उपयोग करना है, तो वो जो व्याधि है वो शस्त्र साध्य होते हैं। कभी कभी शस्त्र साध्य होने के बावजूद भी हमें उपशय नहीं मिलता है। मतलब शस्त्र साध्य से जो शूल है, ये जो है ये कम जरूर हो जाता है, लेकिन अगर इनफर्टिलिटी है तो वो फिर भी साध्य नहीं होती है। फर्टिलिटी में वो उसका परिवर्तन नहीं हो पाता है। तो ऐसे बहुत सी अवस्थाएं होती है जिसमें हमें साध्य साध्यत्व का विचार करना जरूरी है। अभी जब भी हमारे पास पेशेंट आती है तो इतनी बड़ी बड़ी फाइलें लेके हमारे पास आते हैं, तो वो फाइल हमें जरूर ठीक तरह से देखनी चाहिए। उसमें हमें जो कितने साल तक दूसरी जगहों पे एलोपैथिक ट्रीटमेंट ली है या फिर आयुर्वेदिक अगर भी ली है ट्रीटमेंट, तो किस टाइप की ट्रीटमेंट ली है इसका हमें जरूर ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद जब हमारे पास रुग्ण आती है उसका एज क्या है, उसके हिसाब से हमें साध्यत्व तय करके उसमें हमें ट्रीटमेंट चालू करना है। तो अभी हम चालू करते हैं कि निरुक्ति से। तो अभी स्त्री की निरुक्ति तो हमें पता है, अमरकोश में है, स्त्री स्यायते अस्गर्भो अस्या। जिस स्त्री गर्भ का प्रसव करती है उसे ही स्त्री कहा जाता है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ वंध्या निरपत्या स्त्री। तो इसमें स्त्री को, जिस स्त्री में अपत्य निर्मिति होती है परंतु वो जो प्रसव नहीं कर पाती है उसे वंध्या स्त्री कहा जाता है। तो इसमें अबॉर्शंस भी है लेकिन वो प्रसव नहीं कर पाती है। पूरे दिन 9 महीने पेट में रखने के बाद बच्चे को प्रसव नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्त्री को हम वंध्या कह सकते हैं। ऐसे शब्दकोश में हमें बताया गया है। वंध्या भेद अगर हम हरित संहिता में देखेंगे तो उसमें 6 प्रकार के वंध्या के भेद हमें दिखाई देते हैं। इसमें वंध्या स्यात् षट् प्रकारेण बालेन अपि अथवा पुनः जायते न च गर्भस्य संभूतिश्च कदाचन। अभी ये श्लोक में हम 2 प्रकार से अर्थ देखेंगे। जैसे बाल्यावस्था अगर है तो उसमें गर्भ की धारणा होना मुमकिन ही नहीं है। तो बाल्यावस्था 16 वर्ष तक कहा गया है, तो उसके पहले गर्भ धारणा होना संभव नहीं। लेकिन एक दूसरा अर्थ भी इसमें जरूर होता है जिसमें गर्भाशय की बाल्यावस्था हो। जैसे इन्फेंटाइल अगर गर्भाशय है, बहुत बार ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं कि जिसमें गर्भाशय का पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं होती है, इन्फेंटाइल या फिर स्मॉल साइज ऑफ यूट्रस, ऐसे हमें रिपोर्ट्स सोनोग्राफी में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार में ये वंध्या, ये एक टाइप की हो गई। उसके बाद काकवंध्या, जिसमें एक बार अपत्य प्राप्ति होती है
या फिर एबॉर्शन भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद बहुत सालों तक दूसरे अपत्य की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे स्त्री को काकवंध्या कहते हैं। काकवंध्या क्यों कहते हैं कि जैसे क्रो मतलब कौवे को एक ही आंख रहती है, एक ही आंख से वो देखता है, उसी प्रकार जिस स्त्री को सिर्फ एक ही अपत्य होता है उसे काकवंध्या कहते हैं। उसके बाद अनपत्या, ये जो है कि जिसे एक बार भी गर्भधारणा हुई ही नहीं है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी। तो काकवंध्या को हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कह सकते हैं और अनपत्या को प्राइमरी इनफर्टिलिटी कह सकते हैं। उसके बाद जो आती है गर्भकोशस्य भंगार। सो गर्भकोश का जो भंग होता है, मतलब गर्भाशय जो उसकी यूट्राइन कैविटी जो है उसमें अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसके कोश का अगर भंग किसी कारणवशात होता है तो वो अपत्य की धारणा, गर्भ की धारणा नहीं कर पाती है। ये हर एक के बारे में हम आगे जाके और भी डिस्कस करेंगे, उसमें मैं वीडियोस भी दिखाऊंगी आपको। उसके बाद है धातु क्षयादपि। कभी कभी स्त्री की धातु परंपरा जो है वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं होती है, या फिर डेवलप होती है लेकिन बाद में कुछ हेतुवशात कम हो जाती है। एक धातु से दूसरी धातु का परंपरा निर्माण होना, ये जो परंपरा है वो खंडित हो जाती है। उसके बाद जो है गर्भस्राव, तो जिसमें हैबिचुअल एबॉर्शंस, जिसमें बार बार एबॉर्शंस होते हैं, गर्भस्राव होते हैं। गर्भस्राव मतलब जब तक 4 महीने तक अगर एबॉर्शन होते तो उसे गर्भस्राव कहते हैं। तो गर्भस्राव फर्स्ट 4 मंथ्स में अगर किसी के बार बार फ्रिक्वेंट हैबिचुअल एबॉर्शंस हो रहे हैं तो इस प्रकार के स्त्री को भी हम गर्भस्रावी वंध्या ऐसे कहते हैं। उसके बाद और एक रहता है मृतवत्सा। तो उसमें किसी स्त्री में हमें इंट्रायूट्राइन डिमाइस जैसे आईयूएफडी, इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे 7वें 8वें महीने में गर्भ पेट में ही गुजर जाता है, या फिर कभी कभी स्टिल बर्थ होता है तो उसे मृतवत्सा वंध्या कहते हैं। उसके बाद और एक प्रकार कहा है कि बलक्षया, तो उसमें बलक्षय भी ज्यादा है तो उसको हम दौर्बल्य, ये लक्षण ज्यादा दिखाई देता है, रस धातु की पुष्टि उसमें दिखाई नहीं देती है, तो ऐसे स्त्रियों में भी गर्भधारणा नहीं होती है। तो इस प्रकार से हरित संहिता में हमें वंध्या के भेद दिखाई देते हैं। उसके बाद उन्होंने और भी कुछ कंडीशंस लिखे हैं जिसमें उन्होंने साध्यासाध्यत्व कहा है कि कौन सी स्त्री में हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे और कौन सी स्त्री में ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे अजात रजसा स्त्रीणाम क्रियते यदि मैथुनम, जैसे जिस स्त्री में रजत प्रवर्तन हुआ ही नहीं है, ऐसी स्त्री में अगर विवाह किया जाए तो उसमें गर्भाशय का संकोच हो जाता है और वो कभी भी स्त्री गर्भ का धारण नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार की हिस्ट्री हम लेते हैं क्या, तो वो हमें जरूर देखना है, तभी हमें असाध्यासाध्यत्व का ज्ञान जो है, जो हमारे ग्रंथ के हिसाब से है, वो पता हो जाएगा। तो अभी बहुत बार प्रीमैरिटल सेक्सुअल इंसिडेंट्स हमें दिखाई देते हैं, तो वो भी हमें जरूर हिस्ट्री लेने वक्त पूछना है। तो पेशेंट जो है सेक्सुअली एक्टिव कब से है, वो भी हमें जरूर इसमें पूछना है। तो इसमें गर्भाशय का संकोच जो होता है वो ऐसी तरीके से होता है कि उसमें गर्भधारणा होना मुमकिन नहीं होता। फिर ऐसे स्त्री में हम कितनी भी ट्रीटमेंट देते हैं तो वो शायद साध्यत्व के हिसाब से कष्ट साध्य रहेंगे या फिर असाध्य भी हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हमने देखें तो काकवंध्या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, अनपत्या प्राइमरी, गर्भस्रावी हैबिचुअल एबॉर्शन, मृतवत्सा आईयूएफडी और स्टिल बर्थ, बलक्षया ये जो है वो एब्डोमिनल कॉक से हमें काफी साधन में रखने वाली कंडीशन। ऐसा नहीं है कि बलक्षया का अर्थ एब्डोमिनल कॉक्स ही लगाना है, जो
अभी जो पेशेंट देखे हुए हैं उसमें से अंदाज लगा के ये अर्थ किया है। अदरवाइज देयर आर अदर कंडीशंस आल्सो कि जिसमें पेशेंट को वीकनेस है और उसको एब्डोमिनल कॉक्स नहीं भी है, ऐसा भी दिखाई जा सकता है। उसके बाद अजात रजसा स्त्री उत्पन्न, इसमें गर्भाशय भंग का संकोच होता है, गर्भकोश का भंग होता है। ये जो है वो छठवां जो क्लासिफिकेशन है, इसमें ये सब प्रकार के स्त्रियों का कलेक्शन किया गया है, जिसमें अजात रजसा स्त्री उत्पन्न भी है, गर्भाशय कोश का भंग भी है और धातुक्षय भी है। तो इस प्रकार 6 प्रकार के वंध्या हमें हमारे प्रैक्टिस में भी इस प्रकार के वंध्या हमें जरूर दिखाई देते हैं। तो हरितोक्त वंध्या साध्या साध्यत्व देखते हैं। हमारे चरक सुश्रुत और आदर ग्रंथों में भी साध्या साध्यत्व बताया है, लेकिन हरित संहिता में जितना एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है उतना कौन सी भी संहिता में नहीं मिलता है साध्या साध्यत्व का। तो तस्य उपक्रमण क्रमणं वक्ष्ये येन सा लभते सतम सा च कष्टेन भवति रामा गर्भवती विषम। तो ऐसे उन्होंने ग्रंथकार बताते हैं कि कोई कोई स्त्रियों में हम ऐसे उपक्रम करें कि जिसमें कष्ट साध्य जो है वो वंध्यत्व हो जाता है। उसमें अनपत्येन बलेन अपि जायते विषजाम्बरः न भवेत् काकवंध्याच अनपत्यापि सिद्ध्यति। तो उसमें काकवंध्या, अनपत्या, क्षीण धातुत्वाद, ये सब कष्ट साध्य बताए हैं। तो अगर हम इन शॉर्ट देखें तो बालावस्था, गर्भकोश भंग, बालावस्था के जैसे मैंने बताया अभी 2 हम अर्थ ले सकते हैं, 16 वर्ष के पहले या फिर इन्फेंटाइल यूट्रस। तो ये आइदर कष्ट तो असाध्य है, इन्फेंटाइल यूट्रस है तो असाध्य है, गर्भकोश भंग धातुक्षय जन्य वंध्या है तो ये कष्ट साध्य है, अजात रजसा विवाह उत्पन्न वंध्या भी कष्ट साध्य है, अनपत्या गर्भस्रावी मृतवत्स्या काकवंध्या ये कष्ट साध्य है, और क्षीण धातु उत्पन्न वंध्या सुख साध्य है। तो धातु परंपरा पे अगर हमें काम करना है तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से हम उसका जो क्लासिफिकेशन है वो सुख साध्यत्व में कर सकते हैं। तो हमारे पास जब रुग्ण आती है तो ये कौन से क्राइटेरिया में वंध्या आती है, इस प्रकार से हम साध्या साध्यत्व जान सकते हैं। और हर बार जो पेशेंट का हमें एक पहले विजिट में ही पहले रुग्ण का जो क्वेश्चन रहता है कि इसमें हमें कितने दिन में उपशय मिलेगा, हमें गर्भधारणा कितने दिनों में हो सकती है, ये नॉर्मल क्वेश्चंस जो रहते हैं इसका आंसर हम ये अगर साध्या साध्यत्व हमारे पास पता है तो हम रुग्णा को बता सकते हैं। जैसे सुख साध्य है तो 3-6 महीना दवा लेनी पड़ेगी ऐसा बता सकते हैं, कष्ट साध्य है तो कम से कम 1 साल 1.5 साल आपको दवा लेनी पड़ेगी। शायद वैसे भी संतान उत्पत्ति है, नसीब के ऊपर भी है, जल्दी काम हुआ तो हो भी सकता है। अदरवाइज साध्या साध्यत्व के बाद अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से हमें उन्हें ट्रीटमेंट के लिए तैयार करना, ट्रीटमेंट का अंदाज देना, ये हम जरूर कह सकते हैं। उसके बाद अगर चरकाचार्य क्या कहते हैं वंध्या के बारे में, तो चरकाचार्य कहते हैं योनि प्रदोषात मनसोभितापात शुक्र असृक् आहार विहार दोषात अकाल योगात बल संशयाच गर्भम चिरान विंदन्ति सब प्रजा। तो ये चरकशारी स्थान में हमें दिखाई देता है। तो एक एक हम देखते हैं इसमें। योनि प्रदोष, अगर योनि प्रदोष है तो इसमें वंध्या हमें दिखाई दे सकती है। तो योनि प्रदोष में अगर हमें ये दिखाई देता है तो स्त्री जो है वो गर्भवती नहीं हो पाती है। तो योनि प्रदोष अगर हम देखें तो योनि का मतलब इधर त्रावर्ता योनि हमें जरूर समझना है। तो इसमें रजोदुष्टि भी आती है, आर्तवदुष्टि भी आती है। तो ये योनि प्रदोष जो है उसमें हमें वंध्यत्व लक्षण दिखाई देता है। देन मनसो भी तापात,
मनसा अभितापा, जैसे स्ट्रेस लेवल अगर बहुत ज्यादा है, सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है लेकिन स्ट्रेस लेवल अगर ज्यादा है, हेलो हेलो, अगर योनि प्रदोष है तो वंध्या स्त्री उत्पन्न होती है। मनसा अभितापा, जैसे स्ट्रेस लेवल अगर ज्यादा है तो उसमें हमें पता हो जाता है कि स्ट्रेस अगर ज्यादा है तो गर्भधारणा नहीं होती है। तो अभी का जो रुग्ण हमारे पास, अभी के जो रुग्ण आते हैं तो उसमें आईटी के सेक्टर वाले भी बहुत पेशेंट्स रहते हैं, जिसमें स्ट्रेस लेवल, डेडलाइंस भी ज़्यादा होती है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। किसी को फैमिली स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, किसी को इकोनॉमिकल स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। तो सब प्रकार के स्ट्रेस में हमें गर्भधारणा नहीं होती है ऐसे ज़रूर दिखाई देता है। तो इसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। देन शुक्र असुरुक, तो शुक्र दृष्टि के अगर पेशेंट्स हैं तो उसमें भी हमें दिखाई देते हैं। तो शुक्र दृष्टि जो इधर है वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि हमें पुरुषों में देखना है। तो अभी हम स्त्री वंध्यत्व का बात कर रहे हैं, तो इधर शुक्र जो इधर एक्सप्लेनेशन के लिए अगर हम देखें तो स्त्री शुक्र के दृष्टि का विचार हमें करना पड़ेगा। उसके बाद असुरुक, इधर असुरुक का मतलब है आर्तव या फिर रज, ये भी हम ले सकते हैं। उसके बाद आहार विहार दोषा, कभी कभी बहुत से पेशेंट सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ऐसे रिपोर्ट्स नॉर्मल हमारे पास लेके आते हैं। तो आहार विहार अगर हम उनकी केस हिस्ट्री ले तो उसमें विरुद्धान्न वगैरह की हिस्ट्री हमें मिल जाती है। विहार दोष भी रहता है, जिसमें रात्रि जागरण ज़्यादा है या दिवास्वाप है, अव्यायाम है। तो ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में वो हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। तो ऐसे पेशेंट ज़रूरी हम डाइट मॉडिफिकेशन से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काफ़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं और इसमें गर्भधारणा जल्दी हो सकती है। अकाल योगात बल संशयाच गर्भम चिराग विंदन्ति, तो बल संशय इधर भी चरकाचार्य ने ये महान हेतु कहा है, क्योंकि धातु परंपरा बराबर नहीं है, दौर्बल्य है तो बलक्षय रहेगा। और उसमें ऐसी स्त्रियां जो है उनमें गर्भम चिराग विंदन्ति, देर से इसमें गर्भ का धारण होगा। तो इसमें अभी देर से हो रहा है तो ये जरूर कष्ट साध्य है, ऐसे हमें दिखाई देता है। अकाल योगा जैसे काल, तो इसमें भी काल का जो है तो उसमें ऋतुकाल भी रहता है और उसके बाद जो हेमंत आदि काल जो है तो वो भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये 2-3 चीजें हमें जरूर दिखाई देनी पड़ती है। और उसके बाद चरकाचार्यों ने और भी कुछ फैक्टर्स लिखे हैं, जिसमें मातृतः, पितृतः, आत्मतः, सात्मतः, रसतः, सत्वतः, ये जो चीजें हैं, ये जो गर्भकर भाव जो है वो हमें अगर उसमें अगर ये भावों में अगर व्यापत्ति होती है तो उसमें निमित्तस्य अजन्म भवति, तो अजन्म मतलब या अजन्म भवति, इसमें वंध्यत्व ये लक्षण दिखाई देता है। तो मातृतः, पितृतः, आत्मतः, सात्मतः, रसतः, सत्वतः, ये 6 भाव जो है वो हमारे इसमें दिखाई देते हैं। तो ये मातृज, पितृज, रसज, सात्मज भाव आप ग्रंथ में देख सकते हैं, क्योंकि इसका अभी मैं इधर रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन ये भावों की चिकित्सा जरूर करनी है। तो इसमें से मातृज, पितृज जो भाव है, देन सात्मज है, रसज जो भाव है, ये सुख साध्य है, कष्ट साध्य है। लेकिन अगर सत्वज भाव में या आत्मज भाव में कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें हम ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये थोड़ा कष्ट साध्य या असाध्य भी
हो सकता है। तो इस प्रकार से सत्वज और आत्मज भावों से अगर वंध्यत्व है तो ये कष्ट साध्य या असाध्य जरूर हो सकता है। उसके बाद चरकाचार्य ने और एक कहा है जिसमें कहा है बीज दोषास्तु गर्भस्थम मारुत उपहताशया नृद्वेषिणी अस्तनी चैव षंडी स्यात् अनुपक्रमा। ये चरक चिकित्सा स्थान में हमें दिखाई देता है 30 अध्याय में, योनि व्यापद अध्याय में। तो इसमें बीज दोषादिति सामान्य वचनेन अपि आर्तव रूप बीज दोषः एव ज्ञेयः। तो स्त्री गर्भाशय में, स्त्री के गर्भ में, जब स्त्री गर्भ अपनी माँ के गर्भाशय में है तो गर्भाशय निर्माण करने वाले बीज में अगर वात की वजह से दुष्टि हो जाए तो निर्माण होने वाले स्त्री गर्भ में हमें विकृत गर्भाशयादि अवयव निर्माण होते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसी जो स्त्री गर्भ की उत्पत्ति होती है, स्त्री बच्ची मतलब फीमेल फीटस जब बॉर्न होता है तो वो बड़े होने पर उसमें हमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप होते हुए नहीं दिखाई देते। इसीलिए उन्होंने कहा है मारुत उपहताशया इति मारुत उपहत गर्भाशया अस्तनी ईशस्तनी। तो ये दो भाग उन्होंने बताया है कि इसमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप नहीं होते हैं, जिसमें आइदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं है या फिर बहुत ही छोटे स्तन निर्माण हुए हैं। गर्भाशयस्य तथा आर्तवस्य च उपघातेन स्त्रिया वंध्यत्वं व्यक्तमेव। तो गर्भाशय और आर्तव का जो उपघात है इसकी वजह से ऐसे प्रकार की वंध्या निर्माण होती है। और ऐसी स्त्री कैसी है? षंडी स्यात् अनुपक्रमा। तो ऐसे स्त्री को चरकाचार्य ने षंडी करके पुकारा है और ये अनुपक्रम्य है। इसका मतलब इसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती, तो ये असाध्य है। तो आपको ये दो चार जो हमने रेफरेंसेस देखे तो उसमें आपको पता लग गया होगा कि हमारे पास जो स्त्री आती है तो उसमें हम साध्यासाध्यत्व का निदान कैसे करें। हमें रसरत्न समुच्चय में भी एक वंध्या का वर्णन मिलता है, थोड़ा अलग तरीके से मिलता है, जिसमें उन्होंने आदिवंध्या, रक्तवंध्या, वातवंध्या, पित्तवंध्या, श्लेष्मवंध्या, सन्निपातवंध्या, भूतवंध्या, देववंध्या, अभिचारवंध्या च इति नववंध्या। तो रसरत्न समुच्चय ग्रंथ में हमें नववंध्या का वर्णन मिलता है। इसमें से दैव योगात मतलब आदिवंध्या वो एक है, दोषाधिक्य से 5 है, और भूत, देव और जारण मारण से, अभिचार मतलब जारण मारण से अगर किसी को वंध्या किया गया है, ऐसे वंध्या का वर्णन है। लेकिन इस ग्रंथ में हमें साध्यासाध्यत्व का, इस ग्रंथ में हमें साध्यासाध्यत्व का वर्णन दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर हम अंदाज लेते हैं तो आदिवंध्या मतलब दैव योग से, देन भूत, जारण मारण कृत, अभिचार वंध्या, ये जो वंध्याएं हैं ये जरूर असाध्य हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर देव व्यपाश्रय चिकित्सा उपलब्ध है, परंतु अभी हम देव व्यपाश्रय चिकित्सा नहीं करते हैं, और जो करते हैं तो हमें ज्यादा पता नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की वंध्या अगर हमारे पास आती है तो उसकी ट्रीटमेंट हो नहीं पाती है, देव व्यपाश्रय चिकित्सा हो नहीं पाती है, तो वो असाध्य हो सकती है। लेकिन ये इसके लिए हमें अलग तरीके का डेटा मेरे ख्याल से देखना होगा, डेटा कलेक्ट करना होगा। उसके बाद और एक रेफरेंस हमें मिलता है जो है काश्यप। तो काश्यप संहिता है तो उसमें जातहरिणी का हमें एक उल्लेख मिलता है। काश्यप महर्षि ने उनके कल्प स्थान में रेवती कल्पाध्याय में भिन्न भिन्न जातहरिणियों का वर्णन किया है। जातहरिणी, जात मतलब जो निर्माण हुआ है उसको हरण करने वाला। तो उसमें
उन्होंने ऐसे कहा है कि रेवती नाम का जो ग्रह है वो स्त्रियों के विविध अवस्थाओं में स्त्रियों के शरीर में प्रवेश करके आइदर आर्तव का या फिर स्त्री शरीर का या फिर स्त्री गर्भाशय का या फिर गर्भ का नाश कर देती है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उसमें वो कहते हैं तस्मात् जाता हरिणी पुष्पम हंति, इसका मतलब आर्तव का नाश हो गया, वह पुष्ट हंति मतलब शरीर का नाश हो गया, गर्भांश हंति जातांश हंति, अभी गर्भांश मतलब जो बच्चे गर्भ में है उसका हनन हो गया, जो जातांश मतलब नियोनेटल फेज में है, तो जिनका जन्म हो गया है लेकिन पहले ही कुछ दिनों में 5 या 7 या महीने तक में उनका मृत्यु हो जाता है। जायमानाश्च हन्ति मतलब जो जन्म लेने वाले हैं, और जनिष्यमाणाश्च और जिनका जन्म होने वाला है, इन सबको मारती है। तो अगर भी इसमें हम बाकी की बात छोड़ दें, लेकिन ऐसे सब प्रकार के इनफर्टिलिटी हमें दिखाई देती है। जैसे पुष्पम हंति तो प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्योर हमें जरूर दिखाई देता है, तो जिसमें आर्तव का क्षय हो गया, एएमएच अभी कम होते हुए दिखाई दे रहा है, तो एज कम है और एएमएच बहुत कम है, ऐसे नहीं होना चाहिए अभी, लेकिन फिर भी दिखाई देता है, तो इसमें पुष्पम हंति ऐसे दिखाई देता है। तो हमें ऐसे लक्षण तो जरूर दिखाई देते हैं, तो इसमें हम विचार ऐसा करेंगे कि इसमें जो रेफरेंसेस है इसका हम ये युग में अभी जिस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें हम कुछ उसका फायदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसमें ये जातहरिणी, तो अभी इसको हम वायरस भी बोल सकते हैं, बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं बोलने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ इन्होंने शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। फिर भी उन्होंने इसको असुर या फिर ग्रह बाधा, राक्षस बाधा करके पुकारा है। तो इसका हम किस तरीके से अर्थ लगाए ये हर एक के ऊपर है। अभी सिर्फ इसमें से हमें देखना जरूरी है कि ये जो जातहरिणी जो है वो प्रवेश क्यों करती है। तो उन्होंने बोला है यद भवति असुरम अधार्मिकाणाम अपत्यम अधर्मोपहतम विशेषण। तो उसमें काश्यप महर्षि ने कहा है कि जो स्त्री अधर्मवान है, मतलब धर्म से अनुसरण, धर्म का अनुसर करके उसका आहार विहार या आचार नहीं है, धर्म का आचार विचार नहीं करती है, अशौच है, अपवित्र है, गुरु वृद्ध व्यक्तियों का अपमान करने वाली है, तो ऐसी स्त्रियों में रजस्वला अवस्था, गर्भिणी अवस्था या फिर सुतिका अवस्था में ये जातहरिणी प्रवेश करती है और आर्तव का नाश करती है। तो अभी हमें देखना है कि जो रजस्वला परिचर्या, गर्भिणी परिचर्या, सुतिका परिचर्या कहा गया है, तो उसमें से हम कितना करते हैं, फॉलो करते हैं। तो सिर्फ बाजू में बैठना, अंधेरे खोली में बैठना, ये हमें नहीं देखना है, लेकिन ये परिचर्या में जो आहार विहार बताया है वो इस प्रकार से आहार विहार स्त्री करती है या नहीं करती है, ये जरूर देखना है। तो ये जो बिटवीन द लाइन्स है ये हम अभी के युग में यूज कर सकते हैं। जैसे रजस्वला अवस्था में अगर स्त्री बहुत तीक्ष्ण उष्ण विदाही अन्नपान सेवन करती है तो उसका आर्तव तो नष्ट होने वाला है। अगर गर्भिणी करती है तो उसके गर्भ के ऊपर तो हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होने वाले हैं। सुतिका अगर करती है तो उसके स्तन्य दोष निर्माण होने वाले हैं और उससे फिर वो उसके बच्चे में जाने वाले हैं, तो उससे कभी कभी बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार से हमें ये देखना है। तो इस काश्यपोक्त जातहरिणी का हम अगर अर्थ लगाए तो इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि रजस्वला, गर्भिणी और सुतिका परिचर्या का पालन इस युग की हर स्त्रियों ने करना चाहिए, जो कि मुमकिन हो। ऐसा नहीं है कि सब छोड़ के आप इधर तो कुटी में जाके बैठे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जरूर आप आपके आहार विहार और मानसिक स्थिति पर काम करें तो उसका फायदा हमारे आर्तोत्पत्ति या रजस्वला रजप प्रवर्तन पर जरूर हो जाएगा। उसके बाद
साध्यात्व काश्यप महर्षि कहते हैं कि अगर स्त्री और पुरुष जैसे पति पत्नी अगर दोनों ही अधार्मिक है तो असाध्य है। अगर उसमें से कोई एक धार्मिक है तो ईमानदार है, अभिमान रहित है, रोग रहित है, ऐसा आचरण रोग रहित आचरण कर रहा है, अभिमान रहित आचरण कर रहा है तो वो कष्ट साध्य है। और दोनों ही अगर धार्मिक है, धर्म से काम कर रहे हैं तो ये दाम्पत्य को जरूर अपत्य प्राप्ति होगी। उसके बाद शरीर के साथ साथ हमें मन के ऊपर भी काम करना जरूरी है। जैसे आपको पता है चरकाचार्य ने अग्रय संग्रह में कहा है सौमनस्य ही गर्भधारणाना। दाम्पत्यों में अगर सौमनस्य है तभी अपत्य की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से अगर हम इन शॉर्ट में देखें तो हमें क्या क्या देखना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों के मन का सामर्थ्य कैसा है, मर्म स्वरूप जो गर्भाशय त्रावर्ता योनि जो है जिसमें अपत्य रहने वाला है उसकी शरीर रचना और क्रिया कैसी है, वंध्यत्व की संप्राप्ति कैसी है। अगर अवर्णात्मक वात प्रधान संप्राप्ति है तो जरूर ये कष्ट साध्य है। और बीज दोष जनित वंध्यत्व है या नहीं, स्त्री रजस्वला गर्भिणी या फिर सुतिका परिचर्या का पालन उसने किया है या नहीं, ये सब की हमें इन शॉर्ट हिस्ट्री हमारे पास होनी चाहिए। जब भी आपके पास स्त्री रुग्णा वंध्यत्व के लिए ट्रीटमेंट के लिए आती है तो इस प्रकार से आपको देखना है, इस प्रकार से आयुर्वेदिक आपको केस टेकिंग जरूर करना है। सिर्फ उसके रिपोर्ट देखे, जैसे बहुत बार ऐसे होता है पेशेंट्स वैद्य जो है पेशेंट का देखते हैं अरे इसको फाइब्राइड है चलो ये दे दो, चलो इसको पीसीओडी है इसको ये दे दो। तो इस प्रकार से हम वंध्यत्व की ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो उसमें कभी उपशय नहीं मिलेगा, और कभी मिल भी गया तो वो उस दंपत्ति का दैववशात हमें उसमें ट्रीटमेंट का उपशय मिला होगा, लेकिन हर बार हमें दैव साथ नहीं देगा। तो इसीलिए हमें पूरी हिस्ट्री जो है वो इस प्रकार से लेनी चाहिए। अभी एक एक पॉइंट फिर से थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे। जैसे मर्म स्वरूप गर्भाशय त्रावर्ता योनि जो मैंने अभी अभी कहा है तो उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इसके बारे में हम ज्यादा देखेंगे क्योंकि मर्म स्वरूप अगर हम इसमें बोल रहे हैं तो मर्म स्वरूप जो जो ऑर्गन्स है अवयव है ये सब मध्यम रोग मार्ग में आते हैं, और मध्यम रोग मार्ग में जो जो व्याधि होते हैं वो कष्ट साध्य या असाध्य होते हैं। ओके, तो अभी ये मर्म का जो हमें रेफरेंस मिलता है वो शिशु चिकित्सा स्थान में मिलता है। उसमें अश्मरी निर्हरण करते समय जो शस्त्रकर्म सुश्रुताचार्य ने बताया है उसमें मर्म सदृश 8 अवयवों का उन्होंने उल्लेख किया है। ये जो 8 अवयव है उसको टाल के उन्होंने छेद लेने के लिए बोला है। तो उसमें सेवनी शुक्रहरणी स्रोतसी फलयोर्बुदम मूत्रसेकम मूत्रवहम योनिर्वस्तिर तथाष्टमा। तो उसमें क्या क्या है, सेवनी है, देन अंतफल है, बुध है, मूत्रसेकम मूत्रवह यूरेथ्रा है, गविनी है, त्रावर्ता योनि है, यूरिनरी ब्लैडर है। तो अगर आप देखें इसमें बस्ती और बुध ये जो है वो सद्य प्राणहर मर्म है, उन दोनों के बीच में आर्तवह स्रोतस है। तो इन दोनों के सद्य प्राणहर मर्मों के बीच में गर्भाशय का स्थान है, इसलिए ये भी मर्म सदृश होता है। उसके बाद अगर हम स्रोतस विद्धत्व लक्षण देखते हैं तो उसमें अर्तवह तयोर्मूलम गर्भाशय अर्तवाई निश्चितमन्या तत्र विद्याया वंध्यत्वम। तो इधर उन्होंने साफ बताया है सुश्रुताचार्य ने कि गर्भाशय या अर्तवाहिनी दोनों को अगर विद्धत्व आता है तो वंध्यत्व ये लक्षण दिखाई देता है। उसके साथ साथ अर्तवनाश मैथुन असहिष्णु। तो आप कभी भी मर्म का अध्याय अगर पढ़ते हैं तो मर्म के अध्याय में आपको दिखाई देगा कि सद्य प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म, वैकल्यकर मर्म, रुजाकर मर्म और विषय लग्न, ये 5 टाइप के जो मर्म है इसमें
इंटेंसिटी के हिसाब से आपको अवयव हानि, क्रिया हानि दिखाई देगी। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शिरोमर्म है, तो शिरोमर्म के ऊपर ये सत्य प्राणहर है। शिरो में अगर त्रावर्ता मर्म, त्रिबस्ती मर्म आपने देखा है, शिरोबस्ती और हृदय, बराबर, त्रिमर्मी अध्याय। तो शिरो में अगर जोर से आघात होता है तो तत्काल प्राणनाश हो सकता है, सत्य प्राणहर मर्म। परंतु यही आघात अगर थोड़ा कम है, इंटेंसिटी कम है, तो हमें दिखाई देगा कि अगर वो पेशेंट कोमा में चला जाता है फिर बाद में मर जाता है, तो ये हो गया कालांतर प्राणहर मर्म। अगर थोड़ा और उससे कम अगर आघात है तो वो वैकल्य कर, तो उसको पैरालिसिस होगा, उसके जो भाग में आघात हुआ है वो अवयवों की कार्यहानि हमें दिखाई देगी। तो इस प्रकार से जो भी मर्म सदृश अवयव है उसका जो विद्धत्व होता है वो कौन सी इंटेंसिटी से होता है, इसके हिसाब से उसका साध्यासाध्यत्व तैयार होगा। उसी हिसाब से अभी हम आगे जाके वीडियोस देखेंगे, तो गर्भाशय और गर्भाशय अर्थवाही धमनिया जो है उसके ऊपर किस प्रकार के आघात है, ये जो आघात है, शल्य जो है वो निज है या आगंतु है, उसके हिसाब से विद्धत्व बदलेगा, और विद्धत्व बदलेगा तो उसके हिसाब से साध्यासाध्यत्व भी बदलेगा। उसके बाद मर्म स्वरूप है, ऐसे हमें और कैसे पता चलता है, क्योंकि ये जो है उपस्थ कर्मेंद्रिय है, यूरिनरी सिस्टम जो है वो पायु कर्मेंद्रिय, और जेनाइटल सिस्टम जो है वो उपस्थ कर्मेंद्रिय। तो कर्मेंद्रिय है, इसका मतलब इंद्रियों की धारणा जो करता है वो प्राणवायु करता है, तो प्राण का धारण कर्म है, तो साक्षात प्राण उसमें वसा हुआ है। और दश प्राणायतनानी जो चरकाचार्य ने शारीस्थान में वर्णन किए हैं, उसमें मूर्धा, ओज, शुक्र, शोणित इसका उल्लेख है। तो शुक्र और शोणित, शोणित मीन्स इधर आर्तव, तो वही, और जिसमें अर्थोत्पत्ति होती है वो अंतःफल, ये भी सत्य प्राणहर मर्म में है। तो जब भी पीसीओडी है, ओवेरियन सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, तो इस सब में अंतःफल का विद्धत्व तो दिखाई देता है। उसी प्रकार शुक्रवाह स्रोतसा जो वर्णन किया है उसमें भी उसका मूल स्थान जो है वो स्तन और वृषण है। तो इसमें वृषण जो है वो पुरुषों में है, लेकिन स्त्रियों में हम अंतःफल लेते हैं। तो इसका तो स्तन, वृषण या फिर अंतःफल, ये जो है इसका समावेश जो हम मर्म स्थानों में करेंगे वो युक्ति सम्मत है। तो उसमें साक्षात प्राण की उपस्थिति है, तो उसका उपघात अगर होता है तो प्राण नाश होता है। इसीलिए हमें अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसमें प्राण नाश होता है, इसे बहुत बार दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, अगर अभी कभी कभी ऐसा होता है कि सब रचना जो है स्त्रियों की, गर्भाशय है, आर्तवाही धमनिया है या फिर अंतःफल है, ये सब नॉर्मल हमें दिखाई दे रहे हैं, फिर भी स्त्री को गर्भधारणा नहीं हो रही है। तो इसमें हमें आयुर्वेदिक संप्राप्ति जो है वो हमें डेवलप करनी है। तो उसमें आवरण प्राधान्य, आवरणात्मक वात प्राधान्य की संप्राप्ति निर्माण हो रही है क्या, इसका हमें जरूर विचार करना है। जैसे हमें पता है नहीं वाता दुते योनि नारी नाम सब प्रदुष्यति, तो नारी में वात के सिवाय दूसरी किसी वजह से तो दृष्टि नहीं उत्पन्न होती। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि बहुत बार नारी में काम की वजह से, लज्जास की वजह से वेगोधारण और वेग उदीरण ये बहुत बार दिखाई देता है। तो ये जो है वो प्रधान अपान दृष्टि के कारण है, प्राण दृष्टि के कारण है। तो इसमें अगर एक बार प्राण बिगड़ गया है तो बाकी के भी वायु बिगड़ने वाले हैं, और अपान बिगड़ गया है तो बाकी के भी वायु बिगड़ने वाले हैं। तो इसकी वजह, और ये जो अर्थव स्रोतस है ये पूरा अपान क्षेत्र में काम कर रहा है। इंद्रिय है, इसलिए उसमें प्राण का भी
प्राण का कार्य जो है वो महत्वपूर्ण है। गर्भ धारण करना ये भी खुद प्राण का काम है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो वात प्राधान्य जो है वो नारी में ज्यादा दिखाई देता है। इसीलिए वातरक्त चिकित्सा के बाद उन्होंने योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय कहा है। तो सबसे लास्ट में हमें योनि व्यापक चिकित्सा का वर्णन दिखाई देता है, क्योंकि जैसे अगर देखें तो चरक चिकित्सा सन 28 में वात व्याधि है, उसके बाद 29 में वातरक्त है और उसके बाद योनि व्यापक चिकित्सा है। तो उत्तरोत्तर वात की व्याप्ति जो है वो और गंभीर हो जाती है। तो योनि व्यापक चिकित्सा, योनि व्यापक में वात की संप्राप्ति जो है वो और भी विकट हो जाती है। उसके बाद अशिति वातिका रोगा, जो काश्यप संहिता में वर्णन किया है, उसमें भी वात प्रधान रोगों में वंध्यत्व स्त्रियों में और शांड्यत्व पुरुषों में वर्णन किया है। तो वात जब भी हमारे इसमें आता है तो वात की ट्रीटमेंट जो है वो चंचल है, अमूर्त है, उसके इसीलिए हमें उसके ऊपर काबू लाना, उसके ऊपर विजय प्राप्त होना मुश्किल हो जाता है। तो भेड़ संहिता में भी हमें एक ये होता है कि शरीर में अगर वात प्राधान्य अगर ज्यादा है तो सही गर्भाशय शुक्रम विस्रंसयति योषितः वातः स्त्रिया रजो हंति वंध्या भवति तेन। मतलब विवाह के बाद जब गर्भाशय में शुक्र जो प्रवेश करने वाला है, तो अगर स्त्री के शरीर में वात का प्राधान्य ज्यादा है तो ये शुक्र जिस स्त्री के शरीर में वात का प्राधान्य ज्यादा है उस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता, वो विस्रंसयति, वो वैसे ही बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए गर्भाशयगत क्रावर्ता योनिगत वात प्राधान्य है क्या, अवर्णात्मक वात प्रधान संप्राप्ति बनी हुई है क्या, ये हमें निदान करना जरूरी है। उसके बाद चक्रपाणी की टीका में सिद्धिस्थान में हमें पता होता है, याश्च स्त्रिया वातकृता उपसर्गा गर्भम न गृह्णाति निर्विसमेता। मतलब जिन स्त्रियों में वात जो उपद्रव है, जो अभी हमने बेल संहिता में कहा, वही हमें चरक में भी रेफरेंस मिलता है कि जिन स्त्रियों में वात जो उपद्रव है वो स्त्रियां गर्भधारण नहीं कर सकती है। अगर आप आर्तोत्पत्ति से शुक्र निष्क्रमण, रज निष्क्रमण, गर्भ निष्क्रमण, इन सब पे प्राण, व्यान, समान, अपान, ये सब वायु का नियंत्रण रहता है। गर्भाशय और अंतःफल, इन सभी पांचों वायु के ऊपर उसके ऊपर मतलब ये पांचों वायु का कंट्रोल ही ये गर्भाशय और अंतःफल के काम पे है। वात के प्रधान स्थान जो है कटी, पक्वाशय, इसके आसमंत में ही हमें ये सब दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमें वंध्यत्व का वर्णन ग्रंथों में दिखाई देता है। अभी ये बीज दोषात गर्भस्थ मारुता उपहताशया, ये फिर से रिपीट हो गई स्लाइड आई थिंक। तो बीज दोष जनित वंध्यत्व भी है वो असाध्य है। तो मेरे ख्याल से जो शास्त्र में लिखा है उस प्रकार से साध्यासाध्यत्व अभी अब तक हमने देखा। अभी हमारे पास जो पेशेंट आती है तो उसका हम कैसे देखेंगे, उसका हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, ये थोड़े 2-4 वीडियोस और थोड़े केस डिस्कशन में करूंगी तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो ये अभी उसके लिए पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल हिस्टोलैप्रोस्कोपी क्या होती है, कि अगर नॉर्मल ही पता नहीं है तो विकृति हमें कैसे पता रहेगी। प्रकृति अगर पता है तो विकृति पता चलेगी। तो आप दिखाई दे रहे हैं, अभी हम हिस्टोस्कोपी कर रहे हैं। तो इसमें गर्भाशय के अंदर हम सर्विक्स से एंट्री कर रहे हैं। दिस इज सर्वाइकल कैनाल, एकदम नॉर्मल ये स्कोपी है। अभी हमें दिखाई देगा यूट्राइन कैविटी हम देखेंगे। अभी ये थोड़े से जो टैग्स है वो दीज आर नॉर्मल टैग्स ऑफ एंडोमेट्रियम। अभी हम कैविटी में हैं। लेफ्ट साइड का ऑस्टिया दिख रहा है, राइट साइड का ऑस्टिया भी दिखेगा।
So cavity is in so both ostia seen, cavity is in normal shape, normal size. So this is normal hysteroscopy. इंडिविजुअल टैग्स आपको दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद हम नॉर्मल ये देखेंगे, लैप्रोस्कोपी देखेंगे. गर्भाशय नॉर्मली कैसे दिखाई देता है आप देखिए. ये ओवरी आपको दिखाई दे रही है, पर्ली वाइट ओवरी, थोड़े मोमेंटम. दिस इज यूट्रस, मोमेंटम है, फैट है, दिखाई दे रहा है, सब नॉर्मल है. इधर भी एडेजेंस वगैरह नहीं है. दिस इज टोटली नॉर्मल लैप्रोस्कोपी. अभी देखिए राउंड लिगामेंट, ओवरीज, ब्रॉड लिगामेंट. देन दिस इज फैलोपियन ट्यूब्स. तो दोनों तरफ से डाई आ गया है. आपको नीला रंग का डाई दिखाई होगा. सो वी कैन सी बोथ द ट्यूब्स आर नॉर्मल पेटेंट. देखिए पाउच ऑफ डगलस में हमें सब फ्लूइड दिखाई दे रहा है. सो बोथ ओवरीज आर नॉर्मल, बोथ ट्यूब्स आर नॉर्मल, पेटेंट. सो हिस्टेरोस्कोपी एंड लैप्रोस्कोपी बोथ आर नॉर्मल. तो यहाँ रचनात्मक विकृति हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है. फिर भी ये पेशेंट वंध्या है, तो इसमें अभी हमें वात प्रदान या फिर आवरणात्मक संप्राप्ति का विचार करना पड़ेगा. अभी नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं. तो जैसे बालावस्था बीज दोष जनित हमने जो असाध्य देखा था, तो अभी देखिए इधर हेल्दी यूट्रस कैसी, उसकी साइज देखिए. इसमें सर्विक्स छोटा है, इधर तो वजाइना छोटा है बीच में. तो ये जो है वे साइज में छोटे यूट्रस है. तो कभी कभी गर्भाशय की ग्रोथ नहीं होती है, कभी वजाइना की नहीं होती है, कभी दोनों की नहीं होती है. तो इस प्रकार से हाइपोप्लास्टिक यूट्रस हमें दिखाई देता है. उसके बाद गर्भाशय कोशभंग, कंजेनिटल एनामोलीज ऑफ यूट्रस, ये कष्टसाध्य और असाध्य है जो हमने अभी देखा था. तो उसमें हमें क्या क्या दिखाई देता है देखिए. हाइपोप्लेजिया अजेनेसिस, इसमें पहले वजाइनल और दूसरा टाइप है सर्वाइकल. तो वजाइना तैयार नहीं हुआ, किसी में सर्विक्स तैयार नहीं हुआ, किसी में फंडस तैयार नहीं हुआ, किसी में ट्यूब्स तैयार नहीं हुई. यूनिकार्निएट भी हमें दिखाई दे रहे हैं. कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग उसके कैविटीज हैं. सो कैविटी, नो कैविटी, नो हॉर्न. सो यूनि हमें वो दिखाई दे रहे हैं. उसके बाद सेप्टम, सबसेप्टेट, आर्कुएट, डायथिल सिल्वेस्टेरॉल ड्रग रिलेटेड टी शेप जो यूट्रस रहता है, इसमें दिख रहा है आपको 7 टाइप जो दिखाई दे रहा है. दिस इज बिकॉज अगर पेशेंट अगर गर्भिणी अवस्था में, तो पहले के ज़माने में लेते थे, अभी तो हम कभी यूज़ नहीं, वैसे आयुर्वेदिक है तो हम तो यूज़ ही नहीं करते. लेकिन जो एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं, इसमें अगर उसने डायथिल सिल्वेस्टेरॉल अगर लिया है ड्रग ये, तो उसके बच्ची का यूट्रस टी शेप का हो सकता है. तो हमें जब पेशेंट हमारे पास आती है तो उसका HHG देखना है, लैप्रोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी देखना है. तो उसमें सेप्टेट है, सबसेप्टेट है, कंप्लीट है, पार्शियल है, ये सब हमें दिखाई देगा. तो गर्भाशय कोशभंग में इसमें आपको नॉर्मली जो हमें दिखाई देते हैं उसमें रहते हैं टी शेप भी रहते हैं, देन सेप्टेट, सबसेप्टेट भी रहते हैं. तो यू कैन सी कि सेप्टेट यूट्रस जो है, नॉर्मल यूट्रस में कैविटी कैसी है, सेप्टेट में कैसी है, और पार्शियल में कैसी है, और कंप्लीट में कैसी है. तो पार्शियल में है
तो भी गर्भधारणा होना मुश्किल है और कंप्लीट में तो मुश्किल ही है। तो ऐसी जो चीजें हैं, तो पहले 20 साल पहले जैसे जब भी हिस्ट्रोस्कोपिक ऑपरेशंस अवेलेबल नहीं थी, तो 10 साल पहले ये सब वंध्या स्त्रियों में यह सब असाध्य रहता था। लेकिन अभी जैसे जैसे शस्त्र साध्यता बढ़ रही है, कोई कोई पेशेंट्स में हमें कष्ट साध्य ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, कोई पेशेंट्स में हमें ये दिखाई जरूर देता है। अभी देखिए टी शेप यूट्रस, अभी हमने देखा था, मैंने इधर हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी भी दिखाई है, जिसमें गर्भाशय कोशभंग जो है, नॉर्मल कैविटी कैसी दिखाई दे रही है और टी शेप यूट्रस कैसा है। अभी इसमें मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिसमें सेप्टेड यूट्रस है, तो सेप्टम का रिसेक्शन किया जा रहा है और लैटरल मेट्रोप्लास्टी की जा रही है। तो उसमें आप जरूर देखिए कि जैसे गर्भाशय कोशभंग जो कभी कभी बीजजनित है और कभी कभी वैद्यकृत भी है, आयट्रोजेनिक है। जैसे कभी हम पेशेंट सेप्टेड यूट्रस के लिए कभी कभी सेप्टम छोटा रहता है, फिर भी उसका रिसेक्शन होता है और लैटरल मेट्रोप्लास्टी होती है, उसमें कैविटी कट कर देते हैं, तो उसमें एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस है उसमें गड़बड़ होती है और उसके बाद हमें गर्भधारणा नहीं होती है, ऐसे दिखाई देता है। दिस इज सर्विक्स। हम अंदर जा रहे हैं, 1 मिनट आपको दिखाती हूँ। हाँ, अभी देखिए सेप्टम आपको बीच में दिखाई दिया। अब पहले अब नॉर्मल हमने जो हिस्टोस्कोपी देखी तो हम अंदर से इजी से अंदर गए तो और हम कैविटी में एंट्रेंस लिया था। अभी हम एंट्रेंस नहीं कर पाए, बीच में हमें बैंड जैसा कुछ तो दिख रहा है। तो ये जो है कि हम कट करते जा रहे हैं सेप्टम। ये देखिए बीच वाला ब्रिज जैसा हमें पार्ट दिख रहा है, अभी उसको हम कट करेंगे। अभी देखिए इधर शस्त्र का आघात हो कर्म से अवयव पे, लेकिन ये करना जरूरी भी था क्योंकि जब तक सेप्टम है गर्भधारणा नहीं हो पाती, तो ये सेप्टम हमें निकालना है। जब आती है तो ये सब करके आती है या फिर उसने किया है या नहीं किया, ये भी हमें जरूर देखना पड़ेगा। तो अंदाज से आप एकदम से ट्रीटमेंट चालू करेंगे तो हमें ये टेस्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसके गर्भाशय के अंदर क्या क्या हुआ है ये जरूर हमें पता होगा।
अभी देखिए हमें कैविटी हम अंदर जा सके हैं। अभी ऑस्टिया दिख रहे हैं दोनों टाइप, दोनों लेफ्ट एंड राइट। सो सेप्टम इज रिसेक्टेड नाउ। उसके बाद अभी ये लैटरल मेट्रोप्लास्टी कर रहे हैं, कैविटी उसकी बढ़ा रहे हैं। इसके लिए उसको एंडोमेट्रियम और एंट्रियम दोनों थोड़ा थोड़ा कट कर रहे हैं। तो इसमें हमें मर्माघात लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो हमें ट्रीटमेंट जब करनी है तो इसके ऊपर भी ट्रीटमेंट करनी जरूरी होती है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको बराबर दिखाई होगा। डॉक्टर रामदास बराबर दिख रहा है सबको? क्योंकि कोई कोई इसमें चैट में है कि नहीं दिख रहा है। हेलो, तो हम अगली स्लाइड की ओर जाते हैं। हेलो, हाँ मैडम, डिस्प्ले सर्वर। अच्छा ओके। जरा माझ्याकडे आता काहीतरी एक वेगळं झालेलं दिसतंय। एक मिनिट। मेरा कंप्यूटर थोड़ा हैंग हो गया राइट नाउ। बराबर चल रहा था। एक 2 मिनट रुकती हूँ। वडंदमाना